Hello everyone, welcome back to our channel The Commerce Catalyst. Today we are going to start class 12 chapter number 2 Goodwill. Goodwill. So first of all, what is the meaning of goodwill? Goodwill is an assets, that is the intangible assets which places an enterprise at an advantage to earn higher than normal profits. So what is the meaning of goodwill? What is the meaning? Goodwill, what is the goodwill? Goodwill is a intangible assets. Intangible assets. Goodwill means reputation. Goodwill is the present value of expected future that is expected to be in excess of normal return on investment, or the excess price paid for a business over the book value or over the computed or agreed value of net assets. So that is the assets minus liabilities. So that is the assets minus liabilities. Assets minus liabilities. Goodwill is the reputation. So now the what are the characteristics? What are the features of goodwill? So the it is a intangible assets. So the features oblique characteristics. What are the features of goodwill, or what are the characteristics of the goodwill? So first one is it is an intangible assets. So it does not have physical existence but has a value. Number one, it is a intangible assets. What is goodwill? Goodwill is a intangible assets. So what are the features? So first feature is it is a intangible assets. It does not existence physical existence, but it's a value. So doesn't physical existence, but its value. Number one. So what are the features? The first features is it is a intangible assets and it does not have physical existence, but it has a value. It has a value. It does not have an existence separate from that of an enterprises. It is doesn't value. This is फर्स्ट में हमने क्या देखा कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन इसमें क्या है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन इसका वैल्यू होगा. जैसे अगर आप गुडविल को देखोगे तो इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, एक वैल्यू होता है. जैसे एक फर्म के आधार पे वैल्यू होता है, रेपुटेशन होता है, ब्रांड के आधार पे रेपुटेशन होता है, और
इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल भी एक रेपुटेशन होता है वो, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अभी हम एज अ ये जो है पार्टनरशिप पढ़ाने जा रहे हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 12, बिकॉज ऑफ मिनिमम आई थिंक मिनिमम मार्क्स in these chapters is a 36 marks. So 36 marks content in partnership content 36 marks in class 12. So you have to understand, first one is that how to obtain 36 marks in partnership. So first in the partnership, the one thing you learn, that is the goodwill. So goodwill means, I already told you, goodwill is an intangible asset. Goodwill means reputation of the firm. So it has no physical existence, but its value, and it does not have an existence separate from that of enterprises. It helps in earning higher than it helps earning higher than normal value. नॉर्मल वैल्यू। ये गुडविल में क्यों बता रहा हूँ, ये पार्टनरशिप एक चैप्टर है जिसमें हम सब बताएंगे आपको, और ये 36 मार्क्स आएगा यहाँ से, और ये कैसे आएगा इसका मैं टेक्निक बताऊंगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पार्टनरशिप को सही से 36 मार्क्स लाने के लिए आपको पहले ये गुडविल समझना होगा कि गुडविल क्या है। इसके बाद हम आ रहे हैं कि पहले फीचर समझिए कि व्हाट आर द फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर्स इज इट इज अ इंटेंजिबल एसेट्स, एंड इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसका वैल्यू होता है। उसके बाद मैंने ये बोला कि इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट। हायर देन नॉर्मल वैल्यू का मतलब हायर देन नॉर्मल मीन्स हो गया कि अगर मान लीजिए कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया 10 लाख, बट एक फर्म ए है, बी है और सी है, ये 3 फर्म है। फर्म ए जो है ये नॉर्मल कोर्स में 2 लाख कमा रहा है या 20,000 कमा रहा है, जस्ट एग्जाम्पल 20,000 कमा रहा है। बी जो है वो 30,000 कमा रहा है नॉर्मल में। सी जो है वो 40,000 कमा रहा है। बट ये नॉर्मल है उसका रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन गुडविल अगर है, मान लीजिए इस बी का फॉर्म का गुडविल है और ये रेपुटेशन है, इसका ब्रांड है, तो ये जो नॉर्मल सभी 10,000 में, अगर मान लो कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, या हम यहाँ पे एक और अच्छा सा एग्जांपल दें जो और बेटर होगा। मान लीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सभी 20,000 कमा रहा है, ये ज्यादा अच्छा होगा समझने के लिए। एवरीवन जितने भी हैं, फर्म ए बी सी, तीनों जो है नॉर्मल रेट जो है प्रॉफिट का, अगर 10 लाख यूज कर रहा है तो 20,000 कर रहा है। लेकिन जब बी का रेपुटेशन या ब्रांड नेम अच्छा है तो ये क्या कर रहा है, इसी वैल्यू पे 10 लाख पे ही ये 50,000 कर रहा है। जो हम नेक्स्ट जब मैं बताऊंगा मेथड्स, उस समय मैं इसको और भी एलोबरेट करूंगा। बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फीचर्स में आपने मीनिंग क्या हो गया गुडविल का, कि ये एक रेपुटेशन है। गुडविल इज अ रेपुटेशन, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। अब फीचर्स में हमने देखा कि इट इज ए इंटेंजिबल एसेट, लेकिन इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट ये इट्स वैल्यू होता है, जिसका आपको ये एग्जांपल आपको क्लैरिफाई कर रहा है, दिखा रहा है। इट हेल्प्स अर्निंग हायर देन
नॉर्मल वैल्यू, इसका जो अर्निंग है वो जो नॉर्मल प्रॉफिट्स होता है उससे ज्यादा होगा। और इट अट्रैक्ट्स कस्टमर टू कम फ्रीक्वेंटली, चूंकि ब्रांड अच्छा है तो कस्टमर क्या होगा, ब्रांड अच्छा है तो कस्टमर क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो नंबर थर्ड वन, नंबर थर्ड क्या है कि इट अट्रैक्ट्स क्या होगा, इट अट्रैक्ट्स कस्टमर क्विकली और फ्रीक्वेंटली, it attracts customer to come frequently, और अगर फ्रीक्वेंटली अट्रैक्ट करेगा तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक गुडविल जो है उसमें आपको क्या डिफरेंसेस आया। एक एवरेज प्रॉफिट, इसको हम एवरेज प्रॉफिट मानते हैं कि अगर इफ यू हैव इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज, देन every firm A, B और C earn 20,000 in normal profit. But because of B, brand value is more, so brand value means goodwill. Brand value means goodwill. So goodwill, अरे गुडविल जो है कहीं पे मॉल में नहीं बिकता है यार, गुडविल जो है बनाना पड़ता है। तो ये फर्म जो है भी, इन्होंने मेहनत किया, इन्होंने हार्ड वर्क किया, इनके एम्प्लॉय ने हार्ड वर्क किया। ये फर्म अपने रेपुटेशन को प्रोडक्ट से लेकर के सर्विस से लेके सभी को अच्छा किया, तो आज उसका जो है रिटर्न मिल रहा है बिकॉज ऑफ ओनली ये 10 लाख को ही इन्वेस्ट करने पे इनको 50,000 रिटर्न मिल रहा है। जबकि दूसरा उतना नहीं किया तो उनका 20,020 जो नॉर्मल मिलता है, जो मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है वही मिला। तो हमने क्या देखा कि गुडविल में क्या है, कि गुडविल क्या है, ये एक रेपुटेशन है। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स। फीचर्स क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो पहला है कि इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, मींस इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। और इसका अगेन क्या देखा कि इट हेल्प्स अर्निंग हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा होगा, जो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बताया, एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट ये बताया कि इट अट्रैक्ट्स कस्टमर टू कम फ्रीक्वेंटली क्विकली, व्हाई, बिकॉज इसका ब्रांड वैल्यू अच्छा है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज द लोकेशन, एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशन एंड कस्टमर बेस। ये जितने भी चीज हैं, नंबर 4, इनका क्या है, गुडविल कहां से रिलेटेड होता है, गुडविल रिलेटेड होता है जिस चीजों में, वो होता है कि क्या लोकेशन में है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, आपका ट्रेडमार्क क्या है, ISO सर्टिफाइड ट्रेडमार्क्स, उसके बाद पेटेंट्स, मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में रेपुटेशन क्या है, और कस्टमर बेस क्या है। इसके आधार पे ये गुडविल का होता है। नाउ अब हम आ रहे हैं कि ये बताने के लिए कि what is the tangible assets and what is the intangible assets and fictitious assets। अब हम ये जानेंगे कि ये जितने भी हैं, अब इसमें आके हम समझ रहे हैं कि tangible assets क्या है और intangible assets क्या है और fictitious assets क्या है। tangible, intangible और fictitious। अभी इसमें गुडविल में हमने क्या किया, गुडविल में हम असेट्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। टेंजिबल, इंटेंजिबल and fictitious। अब टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है और फिक्टिशियस क्या है। गुडविल को हमने अभी इंटेंजिबल की बात कर रहे थे। टेंजिबल मतलब जो आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा और इसमें न
फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा और ये नहीं होगा। तो ये तीनों है, टेंजिबल और इंटेंजिबल और फिक्टिशियस। टेंजिबल मतलब जैसे आपको लैंड ये सब आ जाएंगे, वो आपको वहाँ पे ये टेंजिबल में आ जाएंगे। इंटेंजिबल में गुडविल आ गया, और फिक्टिशियस में नाइदर ये और नोर। तो ये आपका हो गया। अब नेचर, इट इज ए इंटेंजिबल एसेट्स हैविंग वैल्यू इट अमाउंट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 26 एएस जो है 26, वो इंटेंजिबल एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट गुडविल इज नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सो अनलेस कंसिडरेशन हैज एक्सचेंज हैंड बिटवीन नॉलेजेबल पर्सन और एम्स लेंथ, सो देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक जो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेयरएज परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड। अब गुडविल का, अब यहाँ पे हम जब नेचर ऑफ गुडविल की बात करेंगे, एक तो सबसे पहले एसेट में मैंने ये देखा कि एक टेंजिबल एसेट्स है, एक इंटेंजिबल एसेट्स आपने देखा, और एक यस देखा। अब क्या हो गया कि टेंजिबल में समझ गए कि प्लांट एंड मशीनरी और दोस थिंग्स, और इंटेंजिबल जो है गुडविल हो गया, फिक्स में नाइदर ये और नोट, ये जो आ जाएगा आपका जो। अब यहाँ पे हम जब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं नेचर ऑफ गुडविल। नेचर, अब नेचर में क्या है, ये दो तरह से गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल जो होगा वो दो तरह की होंगे। नेचर ऑफ गुडविल दो तरह, एक होंगे जो होगा वो है परचेज, जब हम परचेज, जिसको परचेज गुडविल कहते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको हम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करते हैं, परचेज गुडविल। तो हम यहाँ पे एक समझ रहे हैं कि परचेज गुडविल, purchased goodwill, and second one is that the self generated goodwill, self generated or self generated goodwill is not recognized because its value is subjective and it is agreed between among interested parties. So on the other hand, purchased goodwill is recognized being evidenced by payment between among independent parties and employment. So that is the nature of goodwill. One is the purchased goodwill, and second one is that the self-generated goodwill. Self-generated goodwill. Nature of goodwill, purchased goodwill and settlement. Now the valuation of goodwill. Now the valuation of goodwill. Valuation of goodwill. I already told in this chapter, that is the second chapter of goodwill. In partnership, total marks contain 36 marks. तो इस 36 मार्क्स के लिए हमें ये सभी जानने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट हमने क्या समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या है, एक ये रेपुटेशन है, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट्स है, और उसके बाद हमने देखा कि एसेट्स को जो सेग्रीगेशन किया गया है वो टेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल में और फिक्टिशियस में। और उसके बाद हम नेचर ऑफ गुडविल समझे, तो नेचर ऑफ गुडविल में परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एंड नाउ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब कब की जरूरत पड़ेगा गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए। अब देखो सबसे पहले ये हम एक आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। तो एक बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप मींस, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एंगेज द शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एक पार्टनरशिप बनाने के लिए, ये पार्टनरशिप कंटेन कर रहा है 36 मार्क्स माय डियर फ्रेंड, सो प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। इस पार्टनरशिप 36 मार्क्स कंटेन करने के लिए हमें रूट में जाना होगा। रूट में क्या जाते हैं हम कि एक सबसे पहले तो एक पार्टनर बनाते हैं। तो पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम एक बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप को जो जरूरत पड़ी, उस पार्टनरशिप क्या करेगा उसमें, व्हाट इज द रोल। तो सबसे पहले व्हाट इज द पार्टनरशिप, जो आई विल डिस्कस लेटर ऑन। तो पार्टनरशिप मींस क्या होता है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब ये जो है दो व्यक्ति जब रहेंगे तो दो और दो से ज्यादा,
जब टू और मोर पर्सन है हु हैव एंगेज द शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस में शेयर प्रॉफिट होगा, इसीलिए पार्टनरशिप का यहाँ पे जन्म हुआ और इस चैप्टर का जन्म हुआ। अब सवाल उठता है कि गुडविल का क्यों जन्म हुआ? तो गुडविल को इसलिए जन्म हुआ कि मान लीजिए इस पार्टनरशिप में क्या क्या हो सकता है। तो इस पार्टनरशिप को वैल्यूएशन के लिए, यहाँ पे जो वैल्यूएशन के लिए मैंने यहाँ लिखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जरूरत कब पड़ेगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब पार्टनरशिप होगा तो उसमें एक शब्द आएगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि जैसे ही पार्टनर आ जाएंगे कि आपको प्रॉफिट एंड शेयरिंग को निर्धारित करना पड़ेगा। मैं आपको डीड के बारे में बताऊंगा जब पार्टनरशिप पूरा बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको एक गुडविल की चीज बता रहा हूं, उसमें जो चीज आ रहे हैं कवर करना, उसकी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एलोबरेट करूंगा, मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। जब पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसके डीड के बारे में पढ़ाऊंगा और क्यों एग्जिस्टेंस में आया और इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 उसके तहत क्यों ये आया और पार्टनरशिप को हम उसको जो ले करके उसमें क्या क्या जरूरत पड़ सकता है और इस चीज को वैल्यूएशन का जरूरत क्यों पड़ा। तो पहला तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगा जो मैं आपको सिखाऊंगा। सेकेंड वन है कि जैसे ही पार्टनर आया तो एक और शब्द यहाँ पे आ जाएगा जिसका नाम होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर जिसका एक अलग चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पार्टनरशिप पूरा क्लियर कराऊंगा। तो इस गुडविल को क्यों मैंने पहले स्टार्ट किया? बिकॉज ये गुडविल का जरूरत पड़ेगा। कहां पड़ेगा? इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा इसका भी मैं थोड़ा सा झलक दिखा देता हूं आपको। सपोज कीजिए कि एक आम का बगान है और वो आम का बगान दो पार्टनर, जैसे सपोज करो कि एक ए ने और बी ने मिलकर के एक बगान खरीदा और उस बगान में पेड़ लगाया और पेड़ लगा करके वो स्टार्ट किया। जब वो बगान में पेड़ बड़ा हो गया और उसमें मैंगो आने लगा, फल आने लगा, उस समय में सी ज्वाइन कर गया। तो सी जो ज्वाइन किया तो इस ज्वाइन में वो प्रॉफिट लेगा, तो प्रॉफिट लेगा, इसीलिए पहला प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो निकालना जरूरी हो गया। दूसरी बात, जब ये यहां ज्वाइन किया तो चूंकि ए और बी बहुत पहले से इस पे काम कर रहे थे तो इस समय जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा उसके बेसिस पे इनसे हम क्या करेंगे? ज्वाइनिंग लेंगे, जो कैपिटल जिसको बोलते हैं, जो आगे चलेंगे। माय डियर फ्रेंड, ये जस्ट एक स्टोरी है। अगर इस स्टोरी को समझोगे ना तो पार्टनरशिप बहुत ही इजी हो जाएगी आपको। और यहाँ पे 36 मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे समझोगे? अब देखो ये ए और बी दोनों पार्टनर हैं। इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, एक आम का बगान लगाया और आम का बगान के जब ये फल का समय आया तो सी ने बोला कि मैं भी एक पार्टनर बनूंगा। ए भी बोला ओके आप आ सकते हैं, वेलकम। लेकिन आपको आज के डेट में जो वैल्यूएशन है पार्टनर का इस फर्म का, जैसे मान लो ए बी है लेकिन इस फर्म का नाम है, सपोज कीजिए कि इस फर्म का नाम है सार्प, और ये सार्प ने एक बगान लगाया और बगान में ए और बी एक पार्टनर था। उस पार्टनर ने सी को बोला कि भाई तुम यहाँ पे आओगे तो इस सार्प का जो गुडविल है वो आज के डेट में क्या है, उस गुडविल के बेस पे आपको कैपिटल लेके आना होगा। तो इसीलिए पहला आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, दूसरा हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर। इससे आगे थोड़ा और एक स्टेप बढ़े तो तीसरा, क्योंकि जब कुछ एडमिशन होता है तो रिटायरमेंट का भी संभावना रहता है। तो यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये भी एक चैप्टर है, ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डेथ। क्यों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट पड़ा? अभी मैं ये बार बार बोल रहा हूं, गुडविल का निकालने का क्यों आवश्यकता पड़ा? क्योंकि जब हम एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक पार्टनर ए बी सी है और एक ये कंपनी है जिसका नाम है शार्प एंड कंपनी। ये शार्प एंड कंपनी जो है ए बी सी तीन पार्टनर, पहले ए और बी मिलकर के एक ये कंपनी बना शार्प एंड कंपनी, और नया जो है सी ने उसमें ज्वाइन करेगा। तो ए और बी जो भी पहले रेशियो लिया होगा, मान लो हाफ हाफ करके लिया,
50%, 50%। अब जब सी आ गया तो 1/3 करके हो गया। तो इस 1/3 लेने के लिए पहले यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बाद आगे हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर, और इसके बाद डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर, जो हम बाद में बताएंगे, डिसॉल्यूशन होता है, डिसॉल्व होता है, डिसॉल्यूशन। ये सभी हम आपको सेपरेटली पढ़ाएंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, कैसे एडमिशन निकालेंगे, कैसे रिटर्नमेंट। अभी मैंने इसलिए बताया कि गुडविल के लिए, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए क्या क्या जरूरत है और क्यों जरूरत पड़ा वैल्यूएशन, क्योंकि इसके अंदर में प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, एडमिशन ऑफ पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, या कोई पार्टनर डेथ कर गया तो उस केसेस में भी जरूरत पड़ता है, और ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये हो गया नेचर ऑफ गुडविल। अब हम आ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ गुडविल में, जो हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि ये टाइप्स ऑफ गुडविल क्या है। अब इसके बाद जो है, अब हम आपको मेथड ऑफ गुडविल पढ़ाएंगे। ये मेथड ऑफ गुडविल क्या है, लेकिन मेथड ऑफ गुडविल पढ़ने से पहले फिर एक बार मैं इसको रिकैप करता हूं कि गुडविल का मतलब क्या है। ये गुडविल मीन्स है रेपुटेशन, और गुडविल जो होता है ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। अब एसेट्स को जब हम यहाँ सेग्रीगेशन किए हैं तो एक टेंजिबल एसेट्स में किए, इंटेंजिबल में किए और एक फिक्टिशियस में किए। अब हम इसमें क्या किए, नेचर ऑफ गुडविल किए। तो नेचर ऑफ गुडविल में क्या आएगा, एक परचेज ऑफ गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की क्यों बात की है, बिकॉज ऑफ कि ये गुडविल का क्यों वैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, एडमिशन और पार्टनर में भी जरूरत पड़ेगा, रिटायरमेंट में भी पड़ेगा, तभी हम एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल लॉस और एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात कर सकते हैं, और ये दे सकते हैं बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और मैंने ऑलरेडी एक कहानी बताया है। नाउ द नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा मेथड ऑफ गुडविल। सो थैंक यू।